Now exercise 8.2 question number 5. I am going to solve this question. So in this question what is given? इस question में क्या चीजें given है? In a parallelogram ABCD is a parallelogram. So ABCD, this is a parallelogram. That means AB equal to CD and also AB and CD are parallel. ये दोनों parallel हैं, ठीक है? So AB and CD are parallel. Okay. Also we have BC is parallel to AD, ठीक है? Because this is a parallelogram. E and F are the midpoints of side AB and CD. So F, this is a midpoint, and E, this is also a midpoint. ये भी हमारा midpoint है, ठीक है? Midpoint means DF equal to FC and AE equal to EB, ठीक है? So we can write here, हम लोग जो चीजें given थी वो चीजें आप लोग क्वेश्चन में लिख लीजिएगा. हम डायरेक्टली यहाँ पे से प्रूफ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ. ठीक है. सो ये मिड पॉइंट थे. सो वी हैव टू शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD. एक डायगोनल BD ड्रॉ किया गया है. अब हमें ये शो करना है कि जो साइड्स, जो ये लाइन सेगमेंट AF एंड EC थे, ये इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं. ट्राइसेक्ट मीन्स कि DP equal to PQ equal to QB. We have to prove that these three parts are equal to each other. ये equal हैं, ये हमें prove करना है. So let's see, चलिए देखते हैं कैसे इसको prove करेंगे. So जो चीजें given थी उसी की हम help ले रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है? Now here AB is parallel to CD. So AB is parallel to CD. Parallel क्यों है? Because these are the sides of opposite sides of parallelogram. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं शॉर्ट में opposite sides of parallelogram. ठीक है ना? opposite sides of parallelogram. parallelogram की ये opposite sides है. Now here we have AE. देखिए AE and FC. AE and FC these are the part of side AB and CD के part हैं, ठीक है? So we use this in this way that AE and FC these two sides are also parallel. ये दोनों parallel हैं, ठीक है? Therefore AE is parallel to FC, ठीक है ना? AE is parallel to FC and also AE equal to EB equal to DF equal to FC, ठीक है ना? ये साइड्स पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं. अब ये F एंड E मिड पॉइंट हैं, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? जो ये बाइसेक्ट हो रही साइड्स, ये साइड्स सभी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है? सो वी कैन से दैट AE इक्वल टू FC. देखिए AE इक्वल टू FC, ये वाली जो साइड है दिस इज AE इक्वल टू FC. These two sides are parallel and equal. ये दोनों साइड हमारी parallel and equal है, ठीक है? Okay. And also this is midpoint, ठीक है? ये हमारा midpoint है of CD. This is the midpoint of CD. Okay, good. So ये हमें obtain हो गया है, ये दोनों हमें मिल गए हैं. Now अब opposite sides parallel and equal. So by using property of parallelogram की property हम use करेंगे. तो whenever two opposite sides are parallel and equal, so we can say that AF and EC, these two sides are also parallel and equal. Now AF is parallel to EC. AF is parallel to EC and AF is also equal to EC, ठीक है ना? रीजन क्या है कि opposite
sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram, ठीक है ना, opposite sides of parallelogram। तो ये चीज आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि वेन एवर टू साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो another two sides which are opposite they are parallel and equal, वो दोनों पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे। ठीक, उसी को हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया है। सो नाउ कंपेयर दिस, AF equal to EC and these two sides are parallel, AE equal to FC, these two sides are parallel and equal, so we can say that AECF, this is a parallelogram, therefore AECF, ठीक है ना, ये quadrilateral AECF is a parallelogram, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, दैट मीन्स बाहर ये ABCD कोऑर्डिनेटर ये पैरेललोग्राम है और ये अंदर कोऑर्डिनेटर बन रहा है AECF, दिस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ओके, पैरेललोग्राम हो गया, गुड। सो अब हम ये क्या कह सकते हैं, अब आपको देखना है इन ट्रायंगल CDQ, अब ट्रायंगल CDQ में देखिए, ठीक है। सो इन ट्रायंगल CDQ, जब हम इस इन ट्रायंगल में देखेंगे तो वी हैव हियर साइड QC, वी हैव साइड QC एंड PF, QC एंड PF। नाउ व्हाट अबाउट QC एंड PF, अगर हम बोलना चाहें तो वी नो दैट EC इज पैरेलल टू AF, सो वी कैन से दैट QC इज ऑल्सो पैरेलल टू PF, है ना, क्योंकि ये AE का ही पार्ट है QC AE का ही पार्ट है ना। तो इसी को हम डायरेक्टली लिखेंगे, हम क्या है, सिंस EC इज पैरेलल टू AF, EC एंड AF ये पैरेलल हैं, ठीक है, देयरफॉर EC का एक ये पार्ट है छोटा सा QC, देयरफॉर QC इज पैरेलल टू PF, ये PF किसका पार्ट है, PF AF का पार्ट है, ठीक है। सो वी कैन से दैट QC इज पैरेलल टू PF, QC इज पैरेलल टू PF, ठीक है। सो देखिए क्या मीनिंग निकल के आई, QC ये वाला QC एंड PF, ये दोनों साइड हमारी पैरेलल हैं, ठीक है। नाउ सी इन ट्रायंगल QCD, in triangle QCD, here point F is midpoint, point F is midpoint and PF is parallel to QC, so we can apply here midpoint theorem, हम लोग यहाँ पे midpoint theorem अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। midpoint theorem अप्लाई करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 कंडीशन चाहिए होती हैं। एक कंडीशन अभी यहाँ पे हमारे पास है कि F एक ये मिड पॉइंट है, और एक कंडीशन ये है कि PF और QC ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब जब मिड पॉइंट अप्लाई करेंगे हम लोग, देयरफॉर बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करें इस ट्रायंगल के अंदर, तो वी कैन से दैट PF इक्वल टू हाफ ऑफ QC, ठीक है, PF इक्वल टू हाफ ऑफ QC एंड we can this say that this point P is also a midpoint, ये पॉइंट P भी हमारा ये मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट P is also a midpoint, ठीक है ना, ये भी एक मिड पॉइंट है। तो अगर ये पॉइंट P मिड पॉइंट हो गया है साइड QD के लिए, है ना, ये यहाँ पे हम ये भी ऐड कर दें फॉर QD के लिए, ठीक है ना, QD के लिए ये मिड पॉइंट है। सो मीनिंग क्या हुई कि DP इक्वल टू PQ, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर दिस इंप्लाइज दैट DP
इक्वल टू पी क्यू, डी पी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, यह मिल गया डी पी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, डी पी इक्वल टू पी क्यू। ठीक, तो ये तो अभी हमने लिया ये वाला ट्रायंगल, ये तो अभी हमने लिया ये वाला ट्रायंगल। नाउ अब सिमिलरली व्हेन विल टेक दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ए बी, इसी तरीके से हम लोग जब ट्रायंगल पी ए बी लेंगे, ट्रायंगल पी ए बी कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ए बी, ये जस्ट नीचे वाला ट्रायंगल पी ए बी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है ना, इस तरीके से जब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो आप इसमें देखिए, है ना, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इन ट्रायंगल पी ए बी। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, सो हियर पॉइंट ई, हियर पॉइंट ई इज मिड पॉइंट, ये पॉइंट ई हमारा मिड पॉइंट है। ऑल्सो ए पी एंड क्यू ई, these two line segments are parallel to each other। ठीक है, so that means we are getting here two conditions of midpoint। midpoint हमें यहाँ पे two condition मिल रही है, क्या मिल रही है कि E is midpoint, E is midpoint, एक कंडीशन ये मिल रही है कि E is midpoint of AB। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या मिल रही है, QE जो कि EC का ही पार्ट है, तो QE is also parallel to AP, QE is also parallel to AP। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करें, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट दैट, हमें यह मिलेगा कि दिस पॉइंट Q इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट फॉर PB। पॉइंट Q भी ये हमारा मिड पॉइंट है फॉर साइड PB के लिए। ठीक है, पॉइंट Q is also a midpoint, ये भी एक मिड पॉइंट ही होगा। ठीक है, फॉर कौन सी साइड के लिए, PB के लिए। ठीक है, PB के लिए, सो आई एम राइटिंग हियर PB। ठीक, ये मिड पॉइंट हो गया पॉइंट Q, तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि ये PQ इक्वल टू QB। So we can therefore PQ equal to QB, PQ equal to QB। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब नीचे वाला ट्रायंगल लिया तो इसमें PQ इक्वल टू QB ये ऑब्टेन हो गया है, PQ इक्वल टू QB ऑब्टेन हो गया है। ठीक है, आप इसको थोड़ा कंपेयर कीजिए, जो भी हमें ये चीजें ऑब्टेन हुई, जो भी चीजें हमें ये मिली है। सपोज DP इक्वल टू PQ, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, तो देखिए DP इक्वल टू PQ एंड PQ इक्वल टू QB। सो आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, तो क्या मिल रहा है, DP इक्वल टू PQ, वी गेट हियर DP इक्वल टू PQ, ये ऑप्टेन हुआ, और इक्वल टू PQ वाले किसके आ रही, QB के, इक्वल टू QB, ये वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स अब फिगर में देखिए क्या मिल रहा है, DP इक्वल टू PQ। ठीक है ना, DP इक्वल टू PQ एंड PQ इक्वल टू QB एंड PQ इक्वल टू QB। तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि these three line segment are equal हैं। इक्वल मीन्स कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल BD को, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ये पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर हेंस प्रूफ, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, यही तीनों इक्वल पार्ट हैं, हेंस प्रूफ। ठीक है, सो in this way we had solved here question number 5। so by using the same properties and till we had learned
By using all those things, we can solve our exercise 8.2. Hope you have enjoyed this. All the best to all of you, and thank you very much. Thank you, sir.